راولپنڈی کے سنگجانی روڈ پر فلمی سین، قیدیوں کی 3 وینز پر 15 سے 20 مسلح ملزمان کا حملہ، قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش، پی ٹی آئی کے 3 ایم پی اے سمیت متعدد قیدی فرار ہو گئے، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی، فرار کی کوشش کرنے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، تینوں وینز میں ایم پی اے انور زیب، ملک لیاقت اور یاسر قریشی سمیت 187 قیدی سوار تھے، ملزمان نے فائرنگ کر کے پریزن وینز کے ٹائر برسٹ کیے، فائرنگ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قیدی وینز پر حملہ کرنے والے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس ناصر رضوی کہتے ہیں ڈی چوک احتجاج کے 187 ملزمان کو عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ گرفتار حملہ آوروں میں ایم پی اے کا بیٹا، ایک پولیس اہلکار اور 2 دیگر ملزمان شامل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کو حملے میں ملوث قرار دے دیا، عطا اللہ تارڑ کا ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان، میڈیا سے گفتگو میں کہا گرفتار اور فرار ملزمان سمیت منصوبہ سازوں کو بھی سخت سزائیں دی جائیں گی، مزید کہا تحریک انتشار کے کارکنان نے حملہ کیا، حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی تیاری پہلے سے تھی۔ ایس ایچ او، یہ جو ترنول کا ایس ایچ او ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر تالے کھول کے ان سب کو 3 پریزنر وین سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں۔ راولپنڈی واقعے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ الیمین گنڈاپور کہتے ہیں فارم 47 کی جعلی حکومت اور اسلام آباد پولیس نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، آئے دن جو ڈرامے آپ کرتے جا رہے ہیں یہ آپ کو بند کرنا پڑیں گے۔ جیل لے جاتے ہوئے ایس ایچ او ترنول نے اپنے ہاتھ سے پولیس وینز کے شیشے توڑے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا ہمارے 80 سے زائد لوگوں کو جج صاحب نے ڈسچارج کر دیا، جب ان ملزمان کو ڈسچارج کر دیا گیا تو ان کی گرفتاری کسی اور مقدمے میں ڈال دی گئی۔ پولیس حکام ملزمان کو اٹک جیل کی طرف لے جا رہے تھے، پولیس ہمارے لوگوں کو خود کہہ رہی ہے کہ بھاگو۔ جب ان لوگوں کو اٹک جیل ٹرانسفر کر رہے تھے ان 3 پریزن وینز میں، پھر ترنول کی حدود میں انہیں رکے، ترنول تھانہ کے ایس ایچ او شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینز کے شیشے توڑے، دروازے کھولے اور زبردستی تمام پریزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا اور انہیں وہ پش کر رہے یہاں سے بھاگے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ، 10 ایف سی اہلکار شہید، دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق شہید ایف سی کے 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا ضلع کرک سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت، کہا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ، سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس، ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خطاب، کہا ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ اور ایک کے خلاف ہوتا ہے، سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی، بلوچستان میں جو کام کیے ان کا لوگوں کو معلوم ہے، کبھی کاز لسٹ بنانے میں داخل نہیں دیا، انصاف دینا ہمارا فرض ہے، میری آزاد میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں۔ چیف جسٹس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں، ان کی کمی محسوس کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا قاضی فائز کے ساتھ بینچ میں کئی بار اختلاف کیا، چیف جسٹس نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کل کمان سنبھال لیں گے، حلف برداری کا شیڈیول جاری، تقریب کل دن 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی، انتظامات مکمل، مہمانوں کو دعوت نامے بھی بھجوا دیے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید شہید نہیں ہوئے۔ الوداعی ریفرنس میں 12 مستقل، 2 ایڈ ہاک اور 2 عالم ججز نے شرکت کی۔ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر ایسا بدتمیز، بد تہذیب اور منافق آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ میں آج نہیں چونکہ جا رہے ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ گزشتہ 6 ماہ سے یہ بات مسلسل کر رہا ہوں اور میں نے تو خود ان کا رویہ سپریم کورٹ میں برداشت بھی کیا ہوا ہے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے، وہ تاریخ کے اندر
एक मकरू किरदार के तौर पर हमेशा याद रखेगा। साजजादा हामिद रजा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज को बदतहजीब शख्स करार दे दिया। कहा, जस्टिस काजी फाइज को तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मजीद कहा, बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को दूसरी इनिंग्स में भी घुमा के रख दिया। 20 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कम रोशनी के बाइस दूसरे दिन का खेल वक्त से पहले खत्म कर दिया गया। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 24 रन बना लिए। पाकिस्तान को 53 रन की बढ़तरी हासिल। जॉय रूट 5 और हैरी ब्रोक 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। दूसरी इनिंग्स में नुमान अली 2 और साजिद खान ने 1 विकेट हासिल की। 3 मैचों की सीरीज किसके नाम? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टाकरा रावलपिंडी में जारी। दूसरे रोज पाकिस्तान ने 74 रन 4 खिलाड़ी पर आउट पर आगाज किया। पूरी टीम 77 रन पर बरतरी के साथ 344 रन पर ढेर हो गई। सऊद शकील ने इंग्लिश बॉलरों के खिलाफ महाज संभाले रखा। उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 134 रन बनाए। साजिद खान ने धुआंधार 48 रन की इनिंग खेली। इंग्लैंड के रेहान अहमद ने 4, शोएब बशीर ने 3, जबकि गिस इंगस्टन ने 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। जैक लीच ने भी 1 विकेट हासिल की। मर्द मैदान किसे कहते हैं, साजिद खान ने बता दिया। रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेट लेने के बाद साजिद खान का बल्ला भी खूब चला। 48 रन नॉट आउट की बारी में साजिद ने 4 जोरदार छक्के लगाकर इंग्लिश बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। बैटिंग करते हुए साजिद खान के गेंद भी लगी, खून भी निकला, मगर वो डटे रहे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तब्दीली करने का इंतहा। कमेटी में 3 के बजाय 5 जजेस शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को शामिल करने का इम्कान। मौजूदा एक्ट के तहत जजेस की 3 रुकनी कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसका हिस्सा हैं। सत्ताईसवीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुखालफत करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। बोले, अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जलसे, जुलूस, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गिरफ्तारियों के हक में नहीं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। डी चौक एहतजाज केस में अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। वकला ने जमानती मचल के जमा करा दिए। रोपकार जारी होने के बावजूद रिहाई में ताखीर। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस पेशावर में रिहाइश पजीर। मेडिकल टीम उनका तफसीली मेडिकल चेकअप करेगी। पार्टी कायदीन से मुलाकातें मुतवक्किल। उन्होंने जेल गुजारा, जिस तरीके से वो खुद बनिगाला से चल के डियाला गई और ये सब कुछ, तो इसलिए कोई एनआरओ नहीं है। मेरिट पे हुआ इंशाल्लाह और मेरिट पे होगा। मेरा ख्याल है चंद दिन शायद क्याम करेगी पेशावर में और फिर आएगी इधर अदालत में भी पेश होगी, खान साहब के साथ मुलाकात के लिए आएगी। कोई एनआरओ नहीं हुआ, सब मेरिट पर रिहा हुए। बुशरा बीबी पेशावर क्यों गई, इस हवाले से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट लोगों की तवज्जो का मरकज इसलिए नहीं बन रहा कि लोगों को यहाँ से इंसाफ मिला, बल्कि 2 जज अलग अलग कमरे में बैठकर खत लिख रहे थे। काजी साहब अपनी अना की वजह से तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, तारीख याद रखेगी। कहा था, बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिशें करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी है। मेरा एक और वादा और दावा पूरा हो गया। सेनेटर फैसल बावजा ने अपने ट्वीट में कहा कि कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। बिकाऊ लीडरशिप एक बार भी उन्हें पूछने नहीं गई। मैं कौम को सच बताता रहा हूं और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। पहले इनकार नहीं हुआ कि कोई जज नहीं आया किसी तकरीब में। अगेन जुडिशरी की बात है, मेरा नहीं काम है कि उसमें इंटरफेयर करो। आपका दूसरा सवाल भी जुडिशरी के हवाले से, उनको अगर रिलीज़ किया है, बेल दी है तो जुडिशरी ने दी है। इसमें मुझे नहीं पता कि जुडिशरी कैसे इस डील और डील के दायरे में आएगी।
पता नहीं जुडिशरी में डील या ढील कैसे होती है। बुशरा बीबी और दीगर की रिहाई जुडिशरी के दरमियान ही हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द अमल, क्या बानी पीटीआई भी इसी तरह रिहा हो जाएंगे? सहाफी का वजीर आला से सवाल, ये भी जुडिशरी का मामला है? मुराद अली शाह का जवाब, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पास होने से पीटीआई भी खुश है। तहरीक इंसाफ की गैर एलानिया रजामंदी थी। इंटरनेशनली इनके लिए लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं। इस वक्त इसराइली लॉबिंग फर्म्स और इसराइली हुकूमत, जो कि एक तरफ लिबनान पे और फ़लस्तीन पे एक जबर ढाए बैठी हुई है, वो दूसरे एंड पे पीटीआई की इंटरनेशनल सपोर्ट जारी रखे बैठे। लेबनान में इस्राएली फौज सिविलियन के साथ सहाफ़ियों को भी निशाना बनाने लगी। हस्बिया में सिहोनी फौज की बमबारी से मियादीन न्यूज़ के कैमरामैन समेत 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। सिहोनी फौज ने बैरूत समेत लबनान के कई इलाकों में 12 फ़िज़ाई हमले कर डाले, 19 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह की भरपूर कार्रवाइयों में इस्राएली फौज के 5 अहलकार मारे गए, 7 जख्मी हुए, 2 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। गजा में इजरायली फौज की जारियत जारी, जबालिया में 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 150 फलस्तीनी शहीद, खान यूनिस में बमबारी, 28 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बहतलाया में कमाल उद्वान अस्पताल में भी सिहोनी फौज के हमले, कई फलस्तीनी बच्चों की शहादतों की तलाश। शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। हमास की पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई। मुग़वियों की रिहाई सिर्फ इसराइल की गाज़ा में जंगबंदी और मुकम्मल इनखला से ही मुमकिन है। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने मियादीन न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि एंटोनी ब्लिंकन मुज़ाकरात के हवाले से कोई नई चीज़ नहीं लाए। मुग़वियों की रिहाई के लिए जंगबंदी मुज़ाकरात में संजीदा गुफ्तगू की ज़रूरत है। समोआ में दौलत मुश्तरका सरबराहान का इजलास, बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम ने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स इजलास का इफ्तिताह किया। समोआ की वज़ीर आज़म और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल के खिताबात। कॉमनवेल्थ इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तंजानिया के वज़ीर ख़ारजा महमूद साबित कोमो से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। मरियम नवाज़ का कहना था कि तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, 100 इंडेक्स 90,000 की उबूर करके वापस। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में जबरदस्त तेजी रही। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 1047 पॉइंट्स इजाफे से 89,993 पर बंद हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 90,593 रही। इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की मुबैना गफलत व लापरवाही। PIA के 33 तैयारों में से सिर्फ 16 तैयारे ऑपरेशनल। ग्राउंड होने वाले तैयारे पुरज़ाजात ना होने की वजह से ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले पा रहे। कराची प्रेस क्लब पर PhD खातून पर तशद्दुद से मुताल्लिक रिपोर्ट मुकम्मल। 5 थानों के SHOs को ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर दाखिला के नोटिस पर तैयार रिपोर्ट में तमाम अफसरान कसूरवार करार। सरगोदा में हैवी ट्रैफिक, मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। मोजा चकड़ाला के करीब तेज रफ्तार ट्रक नौजवानों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। शेखोपुरा में चावल से भरा ट्रक मोड़ काटते हुए मोटरसाइकिल पर उलट गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्मोक ने लाहौर के मनाजिर धुंधला दिए। फिजा आलूदा होने से बीमारियों के बढ़ने का खदशा। स्मोक पर कंट्रोल के लिए दरख्त लगाने का सिलसिला शुरू। कराची की फिजा भी आलूदा, मुज़र सेहत करार। शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से माजूर, तादाद 41 हो गई। बलूचिस्तान के जिले लोरालई का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ।
बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। वालिदैन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। इमर्जिंग T20 एशिया कप के सेमीफाइनल्स, पाकिस्तान शाहीन्स को श्रीलंका के हाथों शिकस्त, फाइनल की दौड़ से बाहर। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का भारत को जीत के लिए 205 रन का हदफ। हज़ारा बरादरी अपनी रहन सहन और मुनफरद रिवायात की बदौलत एक अलग पहचान रखती है। कोयटा में हज़ारा कबीले की रस्म व रिवाज और सकाफत उजागर करने के लिए नुमाइश लगाई गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हज़ारा बरादरी के सकाफती मलबूसात और खानों के स्टॉल्स लगाए। लाहौर शाही किले में जुल्म और जबर के अनदेखे अबवाब भी शामिल, जिनमें जिद्दोजहद आज़ादी के हीरोज की कहानियां आज भी बरतानवी टॉर्चर सेल में कैद हैं।